तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने फिल्म इंडस्ट्री से वाबस्ता कारकुनों के फलाह व बहबूद के लिए अहम ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि रियासत में सिनेमा टिकटों की कीमतों में इजाफा सिर्फ इसी सूरत में मंजूर किया जाएगा जब फिल्म प्रोड्यूसर्स अपने मुनाफे का 20% हिस्सा फिल्म वर्कर्स वेलफेयर फंड में जमा कराएंगे। वजीर आला ने मजीद ऐलान किया कि हुकूमत सिनेमा वर्कर्स वेलफेयर फंड में 10 करोड़ रुपए जमा कराएगी ताकि फिल्म इंडस्ट्री से मुंसलिक वर्कर्स और टेक्नीशियंस को बेहतर सहूलियात फराहम की जा सके। रेवंत रेड्डी ने यह भी वादा किया कि हैदराबाद के कृष्णा नगर इलाके में फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वालों के बच्चों के लिए एक जदीद स्कूल कायम किया जाएगा ताकि उनके तालीमी मेयार को बेहतर बनाया जा सके। ఈనాడు మీ శ్రమతో ఏర్పడే పెద్ద పెద్ద సినిమా నిర్మాతలు హీరోలు వాళ్ళ సినిమాల టికెట్ల ధరలు పెంచడానికి నా దగ్గరకు వస్తుంటారు। నేను నిర్మాతలకు చెప్పిన మరి పెంచిన దాంట్లో కొంతైనా కార్మికులకు వాటా ఉండాలి కదా అని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సినిమా టికెట్ల ధరలు పెంచితే హీరోలకు ఆదాయం వస్తుంది, నిర్మాతలకు ఆదాయం వస్తుంది, కార్మికులకు మాత్రం ఒక్క రూపాయి కూడా అదనంగా రావడం లేదు। అందుకే ఈ వేదిక మీద నుంచి మీకు మాట ఇస్తున్నా, ఆ ఆదాయంలో 20% కార్మికులకు ఇస్తేనే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం జీవో ఇస్తుంది। करनूल में हालिया बस आतिशदगी वाक़े के बाद तेलंगाना में आरटीसी चौकस है। मेदक डिपो मैनेजर सुरेखा की निगरानी में फायर ब्रिगेड के अमले ने आग से बचाव के हवाले से एक आगाही प्रोग्राम मुनक़िद किया। इस मौके पर फायर महकमे के एहलकारों ने ड्राइवरों, कंडक्टरों और मैकेनिक अमले को बताया कि आग कैसे लगती है और इसे फौरी तौर पर कैसे रोका जा सकता है और हंगामी सूरत हाल में किस तरह मौसर अंदाज में कार्रवाई करनी चाहिए। बताया गया कि इस प्रोग्राम का मकसद आरटीसी स्टाफ को हादसात से निपटने के लिए तैयार रखना था। जिला आसिफाबाद से खबर है, कागज नगर में दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत स्किल डेवलपमेंट सेंटर का इफ्तिताह किया गया। जिला कलेक्टर वेंकटेश धोत्रे, सब कलेक्टर श्रद्धा शुक्ला और सरपुर के एमएलए डॉक्टर पालवाई हरीश बाबू ने इस मरकज का आगाज किया। इस मौके पर जिला कलेक्टर ने कहा कि रोजगार के मुतलाशी नौजवानों को चाहिए कि वो इस ट्रेनिंग सेंटर से भरपूर फ़ायदा उठाएं और अपनी सलाहियतों को निखार कर बेहतर रोजगार हासिल करें। एमएलए डॉक्टर हरीश बाबू ने देही तरक्की के कमिश्नर का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि ये सेंटर मरकजी और रियासती हुकूमतों के इश्तिराक से कायम किया गया है, जहां तरबियत हासिल करने वालों को मुफ्त रिहाइश खाना भी फराहम किया जाएगा। सेंट्रल स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कीम దీన్ని ఈ మారుమూల ప్రాంతానికి తీసుకురావాలనే తలంపుతోటి నేను సృజన మేడం గారు మనం పూర్తి స్థాయిలో హాస్టల్ ట్రైనింగ్ సెంటర్ను ఏర్పాటు చేసినందుకు ఈ సిఆర్డి గారికి మరియు కృష్ణన్ గారికి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ సాహితీ సిస్టమ్ శ్రీధర్ గారు దాదాపు ఇప్పుడే 10-15 లక్షల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టారు ఈ స్కిల్ సెంటర్ మీద। కాట్స్ కానివ్వండి, బెడ్స్ కానివ్వండి, గీజర్స్ కానివ్వండి, ఇటు కంప్యూటర్ ల్యాబ్ కానివ్వండి, మిగతా ఆఫీస్ ఫెసిలిటీ, కౌన్సిలింగ్ రూమ్ కానివ్వండి, పూర్తి స్థాయిలో అన్ని వసతులతో ఏర్పాటు చేశారు। దానికి ముఖ్య కారకులు ప్రాపర్టీ ఓనర్ అయిన గణపురం మురళి గారు। వారు పూర్తి స్థాయిలో దగ్గరుండి వాళ్ళ పిల్లల్ని నర్చర్ చేయడానికి, వాళ్ళ స్కూల్ ఇదివరకు ఇందులో నడిచింది కాబట్టి వారికి పూర్తి స్థాయి అవగాహన ఉంది। వారందరికీ ఒకసారి మీరు చప్పట్లతోటి మనకి ఇంత బ్రహ్మాండమైన బిల్డింగ్ ఎక్కడ అని అంటే ఇది యాక్చువల్గా వేరే స్కూల్, రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ కోసం చూసిన బిల్డింగ్ టైం అట్లా కలిసి వచ్చింది। మీకు రెడీమేడ్గా ఒక హాస్టల్ ఫెసిలిటీతో పాటు ఒకటే క్యాంపస్లో మేము ముందు ఆలోచిస్తూ బ్యాచ్ కాబట్టి మీ మీద ఎక్కువ బాధ్యత ఉన్నది। మీరందరూ ప్లేస్మెంట్స్ తీసుకోవాలి, ఎక్కడ ఉన్న ఊర్లోనే ఉద్యోగాలు దొరకాలి, ఉద్యోగాలు మాకు మేము ఇక్కడనే చేయాలనే ఒక్క ఆలోచన ఒక్కటి పక్కన పెట్టండి, తప్పకుండా మీరు ఫ్లయింగ్ కలర్స్ తోటి బయటపడతారు। మనకు మంచిర్యాల ఎక్కువ దూరం కాదు, మంచిర్యాలలో బ్రహ్మాండమైన ప్లేస్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ ఇవాళైతే మనం బీపీఓ మరియు కాల్ సెంటర్ బ్యాచ్ మాత్రమే తయారు చేసినాం। రేపు మీరు ఎందులో రీటైల్ కానివ్వండి, లాజిస్టిక్స్ కానివ్వండి, ఫార్మస్యూటికల్ ఇండస్ట్రీస్ కానివ్వండి, మిగతా ఫార్మసీ ఏదైతే మన మెడికల్ షాపుల్లో రిటైల్ గా వ్యవస్థలో పనిచేసే వాళ్ళు కానివ్వండి, అన్ని విధాలుగా మీకు అన్ని ట్రేడ్స్ కూడా తీసుకొచ్చి ఏర్పాటు చేస్తాం। ఒక్కటి ఏంటంటే మీరు శ్రద్ధతో చదువుకోవాలి, మంచిగా ప్లేస్మెంట్స్ తీసుకోవాలి, ఎక్కడ ఉద్యోగం దొరికినా అక్కడ పోతాం।
महबूबनगर कलेक्टर ऑफिस के कॉन्फ्रेंस हॉल में विजिलेंस आगाही हफ्ते की तकरीब मुनक्किद हुई। जिला कलेक्टर विजेंद्र अबोई की सदारत में ये प्रोग्राम रखा गया था। इस मौके पर कलेक्टर ने कहा कि हर सरकारी मुलाजिम को दयानतदारी और शफाफियत के साथ अपनी जिम्मेदारियां निभानी चाहिए। करप्शन से पाक अवामी खिदमात को यकीनी बनाया जाए और मुकम्मल शफाफियत के साथ अपनी ड्यूटी अंजाम देना हर अहलकार की अवलीन तरजीह होनी चाहिए। कलेक्टर ने बताया कि 2 नवंबर तक विजिलेंस आगाही हफ्ता मनाया जा रहा है। इस मौके पर अफसरान और कलेक्टेरिएट अमले ने अहद किया कि वो अपनी ड्यूटी ईमानदारी से अंजाम देंगे और अवामी मफाद में शफाफ, मुनसिफाना और जवाबदार तर्ज हुक्मरानी को यकीनी बनाएंगे। वरंगल रेलवे स्टेशन पर खुसूसी तलाशी मुहिम चलाई गई। मंशियात की रोकथाम के सिलसिले में ड्रग कंट्रोल टीम ने पुलिस के साथ मिलकर चेकिंग की। पुलिस ने मुश्तबा अफराद और उनके बैगों की जांच पड़ताल के लिए तरबियत याफ्ता कुत्तों की मदद ली। इंस्पेक्टर सतीश ने आवाम से अपील की कि अगर कोई शख्स मंशियात बेचता या इस्तेमाल करता नजर आए तो फौरन पुलिस को इत्तला दे। आदिलाबाद जिले से ऑनलाइन धोखाधड़ी की खबर है। लड़की की तस्वीर ऑनलाइन देखकर मोहब्बत करना एक शख्स के लिए महंगा पड़ गया। दरअसल वो लड़की नहीं बल्कि एक लड़का निकला जिसने जाली शनाख्त के जरिए 8.5 लाख रुपए का धोखा दिया। डीएसपी एल जीवन रेड्डी के मुताबिक मालतू मंजी नामी शख्स ने सोशल मीडिया पर एक फर्जी खातून की तस्वीर शेयर करते हुए लोगों को लूटना शुरू किया। शिकायत मौसूल होने पर शेरवान कुमार की रिपोर्ट प्रवीण पर वन टाउन पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज किया गया। जिला एसपी खेल महाजन की हिदायत पर तश्कील दी गई। खुसूसी टीम ने 2 दिन के अंदर ही इस फ्रॉड में मुलविस 3 रुकनी टोली को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम खातून की आवाज में फोन पर बात करके रकम हथियाता था। वुमेन का एक फोटो, नीचे इसका नाम कृष्णवेणी बोल के आया करते। उन मैरिज के लिए रेडी है। कोई पर्सन किसको भी कोई विदाउट कास्ट नो बार मैरिज करते बोल के थोड़ा इसमें लिख के है कहते। उन्होंने कंप्लेंट वो उन दिए से फ़ोन नंबर को जो कॉल करे तो उन्होंने मेरा नाम बुकिया गणेश बोल के बोला करते। कृष्णवेणी इसका फ्रेंड बोल के उन बोला हम भी मैरिज के लिए रेडी है बोल के इन लक्ष्मीकांत वो नंबर को कांटेक्ट करे तो वो उनसे कृष्णवेणी से बात करो बोले तो उन्होंने ये बुकिया गणेश का फ्रेंड मालोद मांझी बोल के 1 पर्सन है। उन्होंने ये कृष्णवेणी के नाम टोन से कृष्णवेणी बात करा जैसा वुमेन टोन से इन मालोद मांझी बात करना शुरू करा। फरवरी में ये ट्रांजैक्शन स्टार्ट हो रहा है। फरवरी में बात करने के बाद हमारे को करोड़्स ऑफ रुपीस बिजनेस है, गोल्ड बिजनेस। कोई देखने वाला नया बोल के कृष्णवेणी बोला करते। इन भी हम दोनों मिलके बिजनेस करेंगे बोल के उन्होंने कृष्णवेणी बोला। बाद में इन जैसा कृष्णवेणी फ़ोन में बात करके पैसे पूछा तो फरवरी से अक्टूबर तक रेगुलरली पेमेंट फ़ोन पे में इसको भिजाया, उसका अकाउंट को बुकिया गणेश अकाउंट कृष्णवेणी अकाउंट को भिजाया। एक्चुअली कृष्णवेणी एमआरपीएस के बानी सदर पद्म श्री मंदा कृष्णा मादिगा ने कहा है कि वो पीएम नरेंद्र मोदी के साथ हैं क्योंकि उन्होंने उनकी कम्युनिटी की इज्जत नफ्स की हिफाजत की है। उन्होंने खबरदार किया कि अगर कोई उनकी खुददारी पर हमला करेगा तो वो इसके खिलाफ खड़े होंगे, चाहे वो कोई भी हो। मंदा कृष्णा मलकाजगिरी हल्के के मिर्चेल में मुनक़िदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। दरअसल एमआरपीएस 1 नवंबर को हैदराबाद में दलित सभा मुनक़िद कर रही है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उसी जलसे की तैयारियों के सिलसिले में रखी गई थी। मेदक जिले के नरसापुर में एक अहम सयाहती मरकज बनकर तैयार हो चुका है। जिला कलेक्टर ने बताया कि नरसापुर एको पार्क के कॉटेज बहुत जल्द आवाम के लिए खोल दिए जाएंगे। कलेक्टर ने मंगल के रोज डीएफओ और महकमा जंगलात के अमले के साथ एको पार्क का दौरा किया और यहां तैयार किए जा रहे कॉटेज
और दिगर इंतजामात का मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि महकमा जंगलात की निगरानी में तमाम तैयारियों को तेज़ी से मुकम्मल किया जा रहा है ताकि सयाहों को जल्द से जल्द इन सहूलियात से फ़ायदा पहुँच सके। उन्होंने मज़ीद बताया कि कॉटेजेस का इफ्तिताह रियासती वज़ीर जंगलात कोंडा सुरेखा के हाथों अंजाम दिया जाएगा। आपको रखे बाखबर, देखिए मुंसिफ टीवी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। स्क्रीन पर दिया गया बटन जरूर दबाइए।